Hello my dear student of class 10th. Today your session is 6 pair of linear equation of two variables. Yesterday we discussed about the substitution method and taking some question for homework, and now we start exercise 3.3 question number 7. First second part, s minus t is equal to 3, s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6. First equation is standard form of linear equation, but second is not in standard form of linear equation. Now we convert into standard form of linear equation. 3 2 LCM is 6. 3 2 ja 2 s 2 3 ja 3 t is equal to 6. Now 66 से cross multiplication, 2s plus 3t 6 6 ja 36. This is standard form of linear equation of two variable. This is the first equation, this is the second equation. Now taking value of one variable in another terms of in another variables, s minus t is equal to 3 minus for the 3 plus t. This is the third equation. Now put the value of s in first or second. It is put in second because we find out its value from first. मैंने कल बताया था कि जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखनी है, उससे अलग वाली में रखनी है. ठीक है. नाउ पुट इन इक्वेशन सेकेंड. 2s, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? 3 plus t plus 3t is equal to 36. मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6 plus 2t plus 3t is equal to 36. 2t 3t 5t प्लस का हो जाएगा माइनस का 35 6. तो t is equal to कितना आ गया? 6. So the value of t is 6. Now put the value first, second, third, but we put only in third equation. S is equal to 3 plus 6. S is equal to 3 plus 6, that is 9. So 9, S is 9 and t is 6. To find, check your answer. Put in equation first, second or third. Put in first 9 as value of s and t. 9 minus 6. Let's give 3. So our answer is correct. Otherwise, if it is not gives the right hand side, so it is not correct. Is it clear, my dear? Now for question number 10. It is clear, my dear? Now come on the question number 3. What is the question number 3? ये क्यों करा रहा हूँ अभी से भी बताऊंगा आपको. 3x minus y is equal to 3, 9x minus 3y is equal to 9. This is first, this is second. Now take value of x or y in terms of another variable. We find the value of y from equation first. 3x e plus का इधर minus होता है 1. This is the third equation. Now put the value of y in second. 9x minus 3y. What is the y value? 3x minus 3 is equal to 9. 9x minus 3 is 9x minus plus. Is it? 9x minus 9x, 9 is equal to 9. इसकी वैल्यू फाइंड लो. किसी भी x की ना y की. लेकिन ये बात क्या है? ट्रू है. Since it is true for all value of x and y की और x की वैल्यू के लिए ये क्या है? ट्रू है. दिस इज ट्रू फॉर सो इट हैज मैनी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. चलो अब मैं यहाँ आपको रोकूंगा. ठीक है. ये बात ट्रू आई हमारी, लेकिन वेरिएबल्स की वैल्यू तो नहीं निकली. बेटा जब ये बात ट्रू हो किसी वैल्यू के लिए, x की और y की किसी वैल्यू के लिए ट्रू होगी ये बात. अगर ट्रू 9 इक्वल टू 9 होता है, इट इज ट्रू. सो सिस्टम के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा और आप फाइंड नहीं कर पाओगे वैसे. ठीक है. आज बात. और ये वैल्यू अगर 9 इज इक्वल टू मान लो 9 इज इक्वल टू 18 हो जाता, देन इट इज नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y. सो इट हैज नो सॉल्यूशन. उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा. लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने से पहले भी हम पता करा सकते हैं. कैसे? पिछली एक्सरसाइज में आपने कैसे पता कर लिया था? यू कंपेयर a1 a2. What is the a1 a2? That is 3 upon 9, 1 upon 3, b1 b2. आप ऐसे भी कर सकते हैं. इसे ना सोल्व करके पहले ही पता कर लेंगे सोल्यूशन है कि भी नहीं है. अगर मैंने बताया था इनफाइनाइट सोल्यूशन आया, इफ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन यू कैन नॉट फाइंड.
If no solution, in this case you cannot find. ठीक है, v1 v2 that is -1 upon -3. Is it clear? Minus both are equal. a1 upon a2 equal to v1 upon v2. Now what is the c1 upon c2? 3 upon 9, that is also 1 upon 3. Both all are equal. So infinite मैनी सोल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा तो इस केस में आपको सोल्व नहीं करना, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, ना नो सोल्यूशन में और ना ही किसमें, ना ही नो सोल्यूशन में और ना ही इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, सिर्फ सोल्व होगा यूनिक सोल्यूशन में. इज इट क्लियर? तो इतना ना करके आप ऐसे भी नहीं, पहले ही पता कर लीजिए कि भाई इसके सोल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन तो क्या फाइंड करना है हमें. ठीक है, नो सोल्यूशन है तो कैसे क्या फाइंड कर लेंगे आप. ठीक है ना. इज इट क्लियर माय डियर? अब समझ आया मैं क्यों कर रहा था क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 and 6 for homework. Is it clear my dear? Now taking question number 5th part, first 5th part. ये भी क्यों ले रहा हूँ यहीं पे आपको वैसे बता दूँ. √2x plus √3y is equal to 0 and √3x minus √8y is equal to 0. Here बेटे ध्यान से देखिए केयरफुली. एग्जाम a1 upon a2 √2 upon √3, b1 b2 √3 upon √8. but c1 and c2 constant terms are 0. अगर बेटे constant term 0 आ रहे हैं तो वेरिएबल की पावर 100% 0 आएगी. x is also 0, y is also 0. यहाँ तो लेकिन हमें फाइंड करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है ना. तो फाइंड कैसे करना, लेकिन ये पहले पता चल गया मुझे आंसर क्या है. व्हाट इज द आंसर? दैट इज x is also 0, y is also 0 because constant term c1 and c2 are 0. so now √3x माइनस का तो प्लस का अपॉन में लीजिए √8 upon √3 y. दिस इज द थर्ड इक्वेशन. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट बिकॉज I find this from second, so I put the value of x in first by equation first. √2x, what is the value of x? √8 upon √3y plus √3y is equal to 0. Now taking the LCM, √3 √8 to the 16, √16y प्लस √3y, √3 की √3 से करूँगा 3y इज इक्वल टू 0. ये √3 0 में खत्म. √16 का अंडर √4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0. 7y 4 प्लस 3 7, तो y इज इक्वल टू 0 upon 7, दैट इज y इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ टेक पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1. x y की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन 3 में. सो x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 इंटू 0. होल आर 0. x इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर माय डियर? देखिए खुद ही आ गई वैल्यू, y की वैल्यू भी 0 आ गई और x की भी, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाना था, लेकिन हमने ठीक है पहले ही बता दिया था कि कांस्टेंट टर्म 0 है. सो इट इज 0. इट इज क्लियर माय डियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन. इज इट क्लियर माय डियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? Do you understand substitution method? Please give me answer in my WhatsApp numbers. So 2x plus 3y is equal to 11. This is the first equation. 2x minus 4y is equal to minus 24. This is second equation. And then find the value for m. m की वैल्यू फाइंड करनी है for equation m is equal to y is equal to mx plus 3. क्या करेंगे हम? पहले यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम दिस टू इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है. देन पुट द वैल्यू ऑफ y एंड x इन दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ये माइनस का हो जाएगा बेटा, किसका हो जाएगा 2x 4y. थर्ड इक्वेशन. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. इन प्लेस ऑफ 2x पुट द वैल्यू ऑफ -24 4y plus 3y is equal to 11. 4y 3y 7y माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, दैट इज 35 7 5. इट गिव्स y is equal to 5. नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड. 2x is equal to -24 plus 4 into y 5. 2x minus 24 4 5 the 20. Is it clear? 24 minus 20 that is -4. 2 to the 4. X is equal to -2. The value of x is -2 and y is y from substitution method. Now value of x and y put in this equation and then we find the value of x. How? Taking the equation
y is equal to mx plus 3. What is the value of I? That is 5. M is what is the value of x? That is minus 2 plus 3. प्लस क्या करेगा बेटे? माइनस, therefore minus 2m. 5 minus 3 2 minus 2m. 2 1 ja 2. Therefore m is equal to minus 1. Is it clear, my dear? This is the substitution method. In next session we discuss about third question. Before it कुछ बातें कहना चाहूँगा मैं आप लोगों को. सैटरडे, संडे और वेडनेसडे को मैं आपकी नोटबुक देखना चाहता हूँ. और कैसे? मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में. सैटरडे को 10 थे. इज इट क्लियर माय डियर? आप अपनी सब जने को भी भेजेंगे, मैं पर्सनली चेक करूँगा और रिकॉर्ड में रखूँगा. एंड संडे इट इज़ फॉर 10th बी के सारे बच्चों की कॉपी होनी चाहिए. देखिए रिकॉर्ड मैं रखूँगा जरूर, और इसी के बेस पे मैं आपको नंबर दूंगा, अदरवाइज मैं नंबर नहीं दूंगा. ठीक है. इन वेडनेसडे दैट फॉर 10C. जहाँ तक का आज तक का वर्क हो गया, आज तक यानी टुडे, इस सेशन का सेशन 6 तक, सेशन 6 क्वेश्चन नंबर 3.3 का सेकंड क्वेश्चन तक. ठीक है. मुझे सबकी कॉपी बनी होनी चाहिए. मैं जरूर देखूंगा, पर्सनली देखूंगा. देखिए, और मैं फ़ोन भी कर लूँगा घर में. इज इट क्लियर माय डियर? तो प्लीज़ सैटरडे फॉर 10th A, संडे फॉर 10th B एंड वेडनेसडे फॉर 10th C. प्लीज़ जरूर काम पूरा कर लीजिए अपना. मैं इससे कॉपी देखूँ और अपनी रिकॉर्ड में अपने नाम के साथ, प्लीज़ कॉपी में नाम के साथ आपने भेजना है. इज इट क्लियर माय डियर? अगर नहीं आएगा तो मैं उसका नंबर नहीं देंगे. ठीक है. इसलिए प्लीज़ यहाँ तक का अपना काम आप सब पूरा करके मुझे दिखाइए. मैं देखना चाहता हूँ. उसके बाद मैं एक टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ आपके साथ. ठीक है. Is it clear, my dear? Hope it is clear. Thank you very much, my dear.